This is Dr. Adira Maslam, working as Associate Professor in the Department of Gynae and Obs. In continuation of the previous lectures in which we have discussed the first and second stage of labor, today we are going to discuss the third stage of labor. At the end of the lectures, you people should be able to know about the management of third stage of labor, what are different complications which are associated with third stage of labor, what are different risk factors which are causing these complications, and how we can prevent and timely manage these complications. ठीक है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को मैनेज कैसे करना है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके साथ, क्यों होती हैं ये कॉम्प्लिकेशंस और हम उन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हो जाए तो फिर उन्हें फ़ौरन कैसे मैनेज करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए एट द एंड ऑफ द लेक्चर. Now what is third stage of labor? Third stage of labor is the time from the delivery of the baby to the expulsion of the placenta and membranes. Going back to your knowledge of first and second stage, the first stage starts with the onset of uterine contractions till the full dilatation of cervix. Then second stage starts at full dilatation of cervix and it ends at the delivery of the baby. Now after delivery of the baby, when the placenta and membranes will be delivered, it will be included in third stage of labor. Normally it takes about 5 to 10 minutes. ठीक है, 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर प्लेसेंटा और जो उसकी एसोसिएटेड मेम्ब्रेन्स हैं वो सारी डिलीवर हो जानी चाहिए. नाउ हाउ द प्लेसेंटा इज सेपरेटेड. ठीक है, नॉर्मली तो आपको पता है कि प्लेसेंटा जो है वो एडहेरेंट होता है डेसिडुआ बेसिलिस से. तो क्या होता है कि जब बेबी डिलीवर होता है तो साथ ही separation of placenta starts. It occurs because of the reduction of volume of the uterus due to uterine contraction and retention or retraction, जिसकी वजह से मायोमीटल मसल फाइबर्स जो है वो शॉर्ट होती हैं. इसके शॉर्ट होने की वजह से एक क्लीवेज प्लेन बनता है बिटवीन द डेसिडुआ बेसिलिस एंड फाइनली द सेपरेटेड प्लेसेंटा लाइज फ्री इन द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्राइन कैविटी फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड इनटू द वजाइना. How do you know that placenta is being separated? The cord which was previously cut and clamped, it is in your hand and now there is lengthening of the cord protruding from the vulva. ठीक है, आपने पहले कॉर्ड को जब टॉट करके पकड़ा हुआ है तो जेंटली आपने उसे हल्की सी रिट्रैक्शन दी होती है, उससे फिर आपको अचानक ये फील होता है कि जैसे कॉर्ड जो है वो लंबी होना शुरू हो गई है. इसका मतलब ये है कि अंदर से प्लेसेंटा सेपरेट होना शुरू हुआ है. Then a small gush of blood from the placental bed occurs, which normally stops quickly due to a retraction of the myometrial muscle fibers. ठीक है, थोड़ा सा एकदम गश ऑफ ब्लड आता है, वो ज़ाहिर है जब प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है तो ऑब्वियसली प्लेसेंटल बेड पे जो वेसल्स थी एकदम ओपन हो जाती हैं, लेकिन साथ ही जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो फ़ौरन स्टॉप हो जाती हैं. Then rising of the uterine fundus to above the umbilicus, and the fundus becomes hard and globular as compared to the broad softer fundus prior to separation. ठीक है, क्या क्या होगा? The cord will be seem to be lengthening, a small gush of blood will be appeared, the uterine fundus rises above the umbilicus and it becomes more hard and globular, and all these signs will show that the placenta is being separated. Come to the management of the third stage of the labor. ठीक है, the management of third stage of labor is very important both in clinical point of view and also from your exam point of view. ठीक है, you must encounter a question regarding third stage of labor either in your viva voice or in your SEQs or in MCQs. ठीक है, so every one of you must know about the management of third stage of labor. In management of third stage of labor, we should know about the modern active management of third stage. It is a package of care which includes the following 3 steps. The intramuscular injection of 10 units of oxytocin given as the anterior shoulder of the baby is delivered or immediately after delivery of the baby. जब हेड डिलीवर हो जाता है उसके बाद साथ ही आपको जब शोल्डर्स नज़र आते हैं एट द वल्वा, उस वक्त आपने 10 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन मदर को देने हैं इंट्रामस्कुलरली. ठीक है, जब एंटीरियर शोल्डर ऑफ द बेबी आपको नज़र आता है उस वक्त आइडियली आपको ऑक्सीटोसिन इंट्रामस्कुलरली मदर को दे देनी चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो आप साथ दे दें. इसके अलावा आपने क्या करना है, द अर्ली क्लैंपिंग एंड कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन. इस सारी से क्या होगा कि जो यूट्रस जो है वो
कॉन्ट्रैक्ट करेगी और थर्ड स्टेज में जो नॉर्मली जो ब्लीडिंग होती है उससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर ये सब नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से थर्ड स्टेज की कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो सकती हैं। It reduces the incidence of postpartum hemorrhage from 5 to 15% and an extra 500 ml of blood loss is prevented. ठीक है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की अगर आप एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं तो आपको ये फ़ायदे होते हैं। द फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट इज वॉट, किस में आपने कुछ भी नहीं करना। द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड बाय द मैटरनल एफर्ट एंड नो यूट्रोटोनिक ड्रग्स आर गिवन टू असिस्ट इट्स प्रोसेस। ठीक है, बस आप खड़े हुए हैं ऑफ हैंड और आप देख रहे हैं कि भाई प्लेसेंटा खुद ही डिलीवर हो जाए, लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम्स होंगे। इट इज़ एसोसिएटेड विद हैवियर ब्लीडिंग एंड देयर आर हाई चांसेस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। इसलिए हमने क्या करना है, हमने थर्ड स्टेज को मैनेज करना है बाय इट्स एक्टिव मैनेजमेंट, नॉट बाय फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट। What are the complications of third stage of labor? The third stage of labor is associated with sometimes postpartum hemorrhage. There may be retention of the placenta or uterine inversion may occur. ठीक है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या हो सकता है। अगर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आप प्रॉपरली मैनेज नहीं करते तो पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, या रिटेन प्लेसेंटा हो सकता है, या यूट्राइन इन्वर्जन हो सकती है। Now what is postpartum hemorrhage? Postpartum hemorrhage, I again say that it is a very important question and it is repeatedly asked in your viva examination and in your written examination. So all of you must know about the third stage of labor, its active management and the postpartum hemorrhage. It is actually one of the most common obstetrical emergencies. In the UK Confidential Inquiry 2003 to 2005, hemorrhage was the third most common cause of death. But in less developed countries, hemorrhage is among the leading obstetrical causes of maternal death. ठीक है, ये जो इन्होंने थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ का है, ये यूके में का है, और पाकिस्तान में द लीडिंग कॉज ऑफ मेटरनल मोर्टेलिटी इज हेमरेज, बोथ द एंटीपार्टम हेमरेज और द पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मेटरनल मोर्टेलिटी है वो इन्हीं दो प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। ठीक है, हेमरेज चाहे एंटीपार्टम हो, एंटी मीन्स बिफोर, या पोस्टपार्टम हो, पोस्ट मीन्स आफ्टर, यानी कि डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद जो भी ब्लीडिंग ज़्यादा होगी उसकी वजह से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मेटरनल मोर्टेलिटी है। What is postpartum hemorrhage? It actually denotes excessive bleeding of greater than 500 ml following vaginal delivery. ठीक है, vaginal delivery में 500 ml से ज़्यादा bleeding नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल एक जो vaginal delivery में कम से कम आपको ये देखना चाहिए कि आपकी जो ब्लीडिंग है पेशेंट की वो 500 ml से कम हो। अगर 500 ml से ज़्यादा है तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये पेशेंट इज़ हैविंग पोस्टपार्टम हेमरेज। If the patient is being delivered by cesarean section, then the bleeding should be less than 1 liter. If the bleeding is greater than 1 liter following cesarean section, then the patient is said to be having postpartum hemorrhage. ठीक है, 500 ml अगर vaginal डिलीवरी में इससे ज़्यादा हो और सिजेरियन में अगर 1 लीटर से ज़्यादा हो तो हम क्या कहेंगे कि पेशेंट इज हैविंग पोस्टपार्टम हेमरेज। There are different types of postpartum hemorrhage. It may be a primary postpartum hemorrhage or a secondary postpartum hemorrhage. ठीक है, ये जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डिवाइड की है ये आपने बेसिकली टाइम ड्यूरेशन की बेस पे डिवाइड किया है, बट द कॉजेज बिहाइंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी पीपीएच आर ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है, प्राइमरी पीपीएच हम कब कहते हैं, व्हेन द ब्लड इज लॉस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, एंड इफ द ब्लड इज लॉस्ट आफ्टर 24 आवर्स एंड बिफोर 12 वीक्स। ठीक है, 24 आवर्स और 12 वीक्स के दरमियान में जो हैवी ब्लीडिंग होगी वो सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज है। ठीक है, प्राइमरी कौन सा है, जैसे आज सुबह आपने डिलीवरी की है या सिजेरियन सेक्शन की है और आज सुबह से लेके कल सुबह तक अगर पेशेंट को एकदम हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो प्राइमरी पीपीएच है। सेकेंडरी पीपीएच क्या है कि आपने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया है, पेशेंट को उस वक्त कुछ नहीं था, अचानक कोई 7th डे पे, 15 डे पे, 20th डे पे पेशेंट एकदम हैवी ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर दे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, द पेशेंट इज नाउ हैविंग सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेजेस में टाइम ड्यूरेशन का फ़र्क है एंड ऑल्सो द फैक्टर विच आर कॉजिंग दीज टाइप ऑफ हैवी ब्लीडिंग दे आर डिफरेंट। द इंसिडेंस ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस फॉलोइंग वैजाइनल डिलीवरी इज 5 to 8%। ठीक है, We can also classify it according to amount of blood loss। ठीक है, कि जितना
ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है उसकी बेस पे आप पोस्टमार्टम हेमरेज को डिवाइड कर सकते हैं इनटू अ माइनर पोस्टमार्टम हेमरेज इन विच द ब्लड लॉस इज लेस देन 1 लीटर इन केस ऑफ वजाइनल डिलीवरी। अगर मेजर पोस्टमार्टम हेमरेज है उसमें ग्रेटर देन 1 लीटर होगा, और अगर सीवियर पोस्टमार्टम हेमरेज है तो पेशेंट में लूज ग्रेटर देन 2 लीटर्स ऑफ ब्लड। ठीक है, और दूसरी उसी तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं कि इनटू अ प्राइमरी वन और अ सेकेंडरी वन, जो अभी हमने डिस्कस की है। Now, as you know, the postpartum hemorrhage is associated with high maternal mortality. Many a times patient may die because of postpartum hemorrhage, but also the postpartum hemorrhage is associated with its increased morbidity. ठीक है, अगर पेशेंट्स को इतनी हैवी ब्लीडिंग ना भी हो कि उससे फॉरन मैटरनल डेथ हो तो फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब एक दफ़ा पेशेंट को ब्लीडिंग मोर देन नॉर्मल होती है। क्या क्या हो सकता है कि पोस्टमार्टम हेमरेज में रेंडर द पेशेंट एन एनीमिक वन, और पाकिस्तान में आपको पता है कि पहले 56% ऑफ आवर प्रेग्नेंट पॉपुलेशन इज़ एनीमिक। तो अगर वही एनीमिक पेशेंट जो है उसको पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया तो ऑब्वियसली वो उसमें ब्लड लॉस की वजह से और ज़्यादा एचबी फॉल कर लेगी। एंड यू पीपल मस्ट नो कि एनीमिया जो है इट्स अ मेजर कॉज ऑफ इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू पर्परल इन्फेक्शंस। ठीक है, इम्यूनिटी कम हो जाती है ना एनीमिक पेशेंट्स की, तो उनमें जो फिर पर्परल पायरेक्सिया होने की और परप्यूरिया में जो जो इन्फेक्शंस हैं वो होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। Then many a times in postpartum hemorrhage you have to transfuse blood. Obviously when the patient is losing blood vaginally and the patient is becoming hypovolemic and the patient is going into a state of shock, तो ऑब्वियसली आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से पेशेंट में डिवेलप हेपेटाइटिस और HIV और इस तरह की जो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है वो हो सकती हैं, या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपके पोस्टमार्टम हेमरेज से कितनी हमारी जो पेशेंट्स हैं उनकी मॉर्बिडिटी बढ़ रही है। पेशेंट को एनीमिया हो रहा है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ट्रांसफ्यूजन से हेपेटाइटिस स्प्रेड हो रहा है, HIV स्प्रेड हो रहा है, ट्रांसफ्यूजन के अपने जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं वो हो रहे हैं। देन द पोस्टमार्टम हाइपोटेंशन से देयर मे बी पार्शियल और टोटल नेक्रोसिस ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम पोस्टमार्टम पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म और शी-हैन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, वैसे ये रेयर होता है, लेस देन 10,000 डिलीवरीज होते हैं, लेकिन ये हो जाए तो क्या होता है कि असल में जब एकदम पेशेंट का सडन ब्लड लॉस होता है उससे क्या होगा कि हाइपोटेंशन की वजह से पिट्यूटरी की ब्लड सप्लाई जो है वो टेम्पररी ख़त्म हो जाती है। उस ख़त्म होने की वजह से पार्शियल या टोटल नेक्रोसिस हो सकता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने हार्मोन्स रिलीज होते हैं ऑब्वियसली उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये सारे जो पेशेंट को जो बाद में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फेलियर टू लैक्टेट, शी बिकम्स एमेनोरिक, देयर इज डिक्रीज इन ब्रेस्ट साइज एंड देयर इज लॉस ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, हाइपोथायराइडिज्म एंड एड्रीनल इंसफिशिएंसी में डेवलप। ये सारे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे अब उनकी रिलीज जो है वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, then acute renal failure or other organ system injury it may develop after postpartum hemorrhage, क्योंकि जब पेशेंट का एकदम हाइपोवोलीमिया होता है तो renal blood supply is decreased and many a times if there is history of abruptio placentae जिसकी वजह से पेशेंट को postpartum hemorrhage हुआ है तो उसमें भी obviously there are thromboplastins which are causing the renal damage। ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट में गो इनटू अ स्टेट ऑफ रीनल फेलियर। दिस रीनल फेलियर में बी रिवर्सिबल वन, जिसमें आपको टेम्परली पेशेंट को डायलिसिस पे डालना पड़ता है, बट पेशेंट गेट्स बेटर आफ्टर दैट, बट समटाइम्स इट मे डिवेलप इन पेशेंट में डिवेलप एन इरिवर्सिबल रीनल फेलियर। इन एक्सट्रीम हेमरेज यू हैव टू डू समटाइम्स हिस्टेक्टमी। ठीक है, जब आपको और कोई रिसॉर्ट समझ ना आए तो आपको ऑब्वियसली यू हैव टू टेक द यूट्रस आउट, तो उसमें ऑब्वियसली फिर पेशेंट बिकम्स इनफर्टाइल। Now come to the risk factors of postpartum hemorrhage. The risk factors of postpartum hemorrhage are important to be known, क्योंकि अगर आपको रिस्क फैक्टर्स पता होंगे तो आपको दो फायदे होंगे। एक तो ये कि उन पेशेंट्स को आप पहले से पोस्टमार्टम हेमरेज के लिए आप प्रिपेयर्ड होंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि ये जो पेशेंट्स हैं इनमें ये चांस है कि इनको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, तो ऑब्वियसली आप उस हिसाब से अपने डिलीवरी सूट को इक्विप करेंगे। आपके पास उस हिसाब से सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन, मिडवाइफ, नर्स, रनर
सब कुछ होना चाहिए। उस पेशेंट के लिए आपको पहले से ब्लड अरेंज करके उस पेशेंट के लिए सारी उसकी लैब्स करा के आपको फुली प्रिपेयर रहना चाहिए कि इस पेशेंट में रिस्क है, इसलिए ये किसी भी वक्त पोस्टमार्टम हेमरेज में जा सकती है। ठीक है। अब अगर आप रिस्क फैक्टर्स देखें तो कुछ मैटरनल रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ फीटल रिस्क फैक्टर्स हैं। मैटरनल में भी कुछ प्री एग्जिस्टिंग है और कुछ इस तरह के हैं जो इंट्रापार्टम डेवलप होते हैं। ठीक है। इन पे अगर आप गौर करें तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो इनमें हैं रिस्क फैक्टर्स में, उनमें एक चीज़ कॉमन है एंड दैट इज़ द इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द यूट्रस और द एनलार्ज साइज ऑफ द यूट्रस। ठीक है। ऑब्वियसली जब यूट्राइन सरफेस एरिया एनलार्ज होता है या प्लेसेंटल बेड एनलार्ज होता है तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ लार्ज एक्सपोज्ड एरिया। जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो उसमें क्या होता है कि जो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स जो हैं वो ओपन हो जाती हैं। ठीक है। जिनको कॉन्ट्रैक्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है। एज यू नो दैट यूट्रस इज़ अ हाईली वास्कुलर ऑर्गन, तो वो तो समझें कि इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जब ये ब्लड वेसल्स ओपन होंगी तो पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और इतना बड़ा सरफेस एरिया है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स में they are at increased risk of increased bleeding। अब आप ये देखें कि मैटरनल फैक्टर्स में हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं कि रेज मैटरनल एज है, एक्सट्रीम्स ऑफ मैटरनल एज जो है उस पर सारे ऑब्स्टेटिकल प्रॉब्लम्स ही बहुत ज़्यादा हैं। देन पेशेंट इज प्राइमरी पैरस और ग्रैंड मल्टीपैरा। ठीक है। या तो ये कि बिल्कुल ही पहला बच्चा है या ये कि ग्रैंड मल्टीपैरा है कि ग्रेटर देन 5 ग्रेविडिटी है। ठीक है। तो ग्रेविटी अगर 5 है तो उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट का जो रिपीटेड प्रेगनेंसीज की वजह से उसका एक तो एब्डोमिनल वॉल जो है वो बहुत लैक्स हो जाती है। ठीक है। जिसकी वजह से यूट्रस से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। दूसरा, हर चाइल्ड बर्थ के बाद अ मेजर पार्ट ऑफ द यूट्राइन मसल फाइबर्स इज रिप्लेस्ड बाय एन इलास्टिक टिश्यू। ठीक है। वो जो इलास्टिक फाइबर्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी एज कम्पेयर टू नॉर्मल यूट्राइन मसल फाइबर्स बहुत कम है, जिसकी वजह से उनकी कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होती और यूट्रस जो है वो एटोनिक रह जाती है। Then uterine fibroids, obviously uterine fibroids increase the surface area of the uterus which render the patient कि उसमें बहुत ज़्यादा open ended जो blood vessels जो हैं वो खुली रह जाएं। Also if the uterine fibroid is located in the lower segment of the uterus, तो lower segment will not be able to contract properly. If the patient is having a previous cesarean section, तो obviously previous cesarean section में भी जब आपने जहाँ पे stitching की होती है तो that area of the uterus is replaced by समवट इलास्टिक टिश्यू। ठीक है। जो नॉर्मल हेल्दी मायोमेट्रियम होती है वो उस तरह की मायोमेट्रियम तो नहीं डेवलप हो सकती जहाँ पे आपने सेक्शन करके कट लगाया हुआ है, वहाँ पे स्टिचिंग की हुई है, तो वो एरिया जो है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। देन द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, इफ द पेशेंट इज हैविंग सम टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, वॉन विलिब्रॉन फैक्टर डेफिशिएंसी है या और इस तरह के फैमिलियल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, तो ऑब्वियसली उसमें पेशेंट के ब्लड में कोएगुलेट करने की एबिलिटी बहुत कम है। तो जैसे नॉर्मली थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है तो ऑब्वियसली जितने भी हमारे जो ब्लड के इम्यून सिस्टम है दे कम इनटू एक्शन और वो फ़ौरन ब्लड कोएगुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो उनमें क्योंकि ये कोएगुलेशन देर से होती है या बहुत कम होती है तो उसकी वजह से उतनी देर में पेशेंट काफ़ी ब्लीड कर चुका होता है। देन ओबेसिटी, ओबीस पेशेंट जो हैं उनमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी काफ़ी कम होती है। Then the patients who are having history of antepartum hemorrhage, ठीक है, as you know that antepartum hemorrhage may be because of an abnormally situated placenta which is placenta previa, or it may be due to separation of a normally situated placenta which is abruptio placentae। ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, क्योंकि प्लेसेंटा ने सारा जो लोअर सेगमेंट ऑफ द सर्विक्स है, जो लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस है वो ऑक्यूपाई किया होता है। वहाँ पे प्लेसेंटल बेड जो होता है वो इतनी जल्दी उसमें जो मसल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती जिस तरह की अपर सेगमेंट की कर सकती हैं। ठीक है। इसलिए वहाँ पे जो मसल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ना करने की वजह से यूट्राइन एटोनी हो जाती है जिससे पेशेंट ब्लीड ज़्यादा कर सकता है। और एब्रप्शो प्लेसेंटी में क्या होता है कि देयर आर लॉट ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन्स आर रिलीज विच में लीड टू DIC, जिसकी वजह से पेशेंट की कोएगुलेशन सिस्टम जो है सारा डिस्टर्ब होता है और पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। Then the patients who are having history of previous postpartum hemorrhage, they are at most more risk of developing postpartum hemorrhage this time। ठीक है। ये सारे जो प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उन पेशेंट्स में, उनमें आपने इसी तरह से पहले से अपने आप को तैयार कर लेना है, अपने लेबर रूम सूट को
प्रॉपरली इक्विप्ड कर लेना है ताकि पेशेंट्स को दोबारा पोस्टमार्टम हेमरेज ना हो। इंट्रापार्टम क्या क्या हो सकता है कि इफ द पेशेंट इज हैविंग प्रोलॉन्ग लेबर, कितनी देर से आपने उन्हें सिंटोसिनोल लगाई हुई है, आप उसको यूट्रस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, तो ऑब्वियसली फिर उसके मसल फाइबर जो है उनका पोटेंशियल जो है वो कम हुआ है, ये जल्दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। देन सिजेरियन सेक्शन में ऑब्वियसली नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। फिर सिजेरियन सेक्शन में there are more chances of damage to viscera and more damage there are more chances of damage to neighboring vessels, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होने का चांस है। देन इफ़ यू आर डूइंग एन इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, तो ऑब्वियसली आप एक नॉर्म से हटके कोई काम कर रहे हैं, यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ वैक्यूम कप और यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ फोर्सेप्स ब्लेड, उसके लिए आपको एपिजियोटमी ज़्यादा बड़ी देनी पड़ती है, उसमें आपको कोई वेसल खुल सकती है जिससे ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। या इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग पायरेक्सिया इन लेबर, ठीक है, पायरेक्सिया जब भी कहीं बॉडी में होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा रिलीज़ होती हैं। इन प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से क्या होगा कि पेशेंट की ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये सारे तो मैटरनल फैक्टर्स थे। अब फीटल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है? इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग अ लार्ज बेबी, ऑब्वियसली लार्ज बेबी है तो क्या है, यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन है, सरफेस एरिया ज़्यादा है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी यही मसला है कि यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन है, और मल्टीपल प्रेगनेंसी में तो क्योंकि प्लेसेंटा ही दो हैं, चाहे वो फ्यूज हैं या सिंगल हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारा जो यूट्रस का सरफेस एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ऑब्वियसली जो प्लेसेंटल बेड है वो भी उतना ही बड़ा है, ब्लीडिंग होने का चांस उतना ही ज़्यादा है। पॉलीहाइड्रोमनियोसिस में भी क्या है कि लाइकर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लाइकर वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन है। देन शोल्डर डिस्ट्रोशिया, ठीक है, शोल्डर डिस्ट्रोशिया में क्या होता है कि द शोल्डर हेड इज डिलीवर्ड बट द बेबी स्टक एट द लेवल ऑफ शोल्डर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको बार बार बहुत सारे मनूवर करने पड़ते हैं, आपको उसको शोल्डर को डिलीवर कराने के लिए जब इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करना पड़ता है तो पेशेंट में पोस्टमार्टम हेमरेज का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। We can also memorize the causes of the postpartum hemorrhage by 4 T's, ठीक है। T for tone, tone means tone of the uterine smooth muscles, यानी कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट की है या नहीं की। देन T for tissues, टिश्यूज़ का मतलब ये है कि प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन पूरी तरह डिलीवर हुए हैं कि नहीं, कोई इनका प्लेसेंटा का पार्ट या मेम्ब्रेन का पार्ट अंदर तो नहीं रह गया। असल में नेचर हैज़ गिवन द यूट्रस एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ओनली इफ़ इट इज़ एम्प्टी, यूट्रस कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट अनटिल एंड अनलेस इट इज़ एम्प्टी। तो अगर प्लेसेंटा का कोई लोब पड़ा हुआ है अंदर या मेम्ब्रेन्स का कोई पार्ट पड़ा हुआ है तो यूट्रस प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से पेशेंट की ब्लीडिंग ख़त्म नहीं होगी। देन टी फॉर थ्रोम्बस, थ्रोम्बस मीन द पेशेंट इज़ हैविंग सम कोएगुलेशन प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उसका कोएगुलम सही नहीं बन रहा है एंड द पेशेंट इज़ कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग। Then T for trauma, trauma may be a perineal trauma or it may be a cervical lacerations और periurethral lacerations जहाँ से पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। Then the postpartum hemorrhage may be due to a combined or a combination of any of the above, ठीक है। ये भी हो सकता है कि यूट्राइन एटोनी भी है और साथ ही कोई ट्रॉमा भी है, ठीक है, यूट्रस भी नहीं रिलैक्स की हुई और साथ साथ कोई एपिजियोटमी दी हुई है या सर्वाइकल लेसरेशन है या पेरीयूरेथ्रल टीयर है जो ब्लीड कर रहा है, ठीक है। या ये हो सकता है कि कोई ड्रग्स हमने इस तरह की दी हुई है या पेशेंट ऑलरेडी कोई ऐसी ड्रग्स ले रहा है, एंटीकोएगुलेशन थेरेपी पे है, जिसकी वजह से पेशेंट के ब्लड में कोएगुलेट करने की एबिलिटी जो कम है। इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, पेशेंट को ब्लीडिंग हैवी होगी, ठीक है। नाउ कम टू द इटियोलॉजी ऑफ द यूट्राइन एटोनी। यूट्राइन एटोनी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज। यहाँ पे हमने 50% कहा हुआ है, असल में तकरीबन 70 to 80% ऑफ द पोस्टमार्टम हेमरेज इज ड्यू टू एटोनी ऑफ द यूट्रस, ठीक है। एटोनी ऑफ द यूट्रस के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या है? एक्सेसिव मैनिपुलेशन ऑफ द यूट्रस है, ठीक है। आपने बार बार जब आपने सपोज इंस्ट्रूमेंटल वजाइनल डिलीवरी की है, यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर हैंड अगेन एंड अगेन इनटू द वजाइना, समटाइम्स यू आर मैनुअली रिमूविंग द प्लेसेंटा, या बार बार आप उसे छेड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसके जो नॉर्मल स्मूथ मसल फाइबर्स की एक जो टोन है उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर इन जनरल एनेस्थीसिया बिकॉज यू गिव द ड्रग्स टू रिलैक्स, many a times you give such type of drugs जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वो रिलैक्स होते हैं और उन सारी ड्रग्स का इफेक्ट जो है वो यूट्रस से भी पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से यूट्रस प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। Then again, as we have already discussed, uterine over distension either due to twins or polyhydramnios or a large baby,
देन प्रोलॉन्ग लेबर, ग्रैंड मल्टीपैरिटी, यूट्राइन लियोमायोमास, ऑपरेटिव डिलीवरी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। देन ऑक्सीटोसिन इंडक्शन और ऑगमेंटेशन ऑफ द लेबर, प्रीवियस हेमरेज इन द थर्ड स्टेज, यूट्राइन इन्फेक्शन, एक्सएमिनेशन ऑफ ब्लड इनटू द मायोमीट्रियम, कॉवलेयर यूट्रस। कॉवलेयर यूट्रस किस में होती है? इन केस ऑफ एब्रप्शो प्लेसेंटी। एब्रप्शो प्लेसेंटी में व्हेन देयर इज सेपरेशन ऑफ अ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा, उसमें असल में द प्रॉब्लम इज द प्रीमेच्योर सेपरेशन। अभी बेबी डिलीवर नहीं हुआ हुआ, लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स द प्लेसेंटा स्टार्ट सेपरेटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द डेसिडुआ बेसिलिस। उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड है इट में सीप इनटू द मायोमीट्रियम गिविंग द यूट्रस अ ब्लू लुक। द यूट्रस इज हार्ड एंड टेंडर एंड इट इज़ ब्लू ऑन नेकेड एग्जामिनेशन। उसको फिर हम कॉवलियर यूट्रस कहते हैं। और समटाइम देयर इज इंट्रिंसिक मायोमीट्रियल डिसफंक्शन। ठीक है, मायोमीट्रियम प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। In obstetrical trauma, the excessive bleeding may be from an enlarged episiotomy or there may be vaginal wall lacerations or cervical tears। ठीक है, इन सारी चीज़ों से ऑब्वियसली जब वेसल्स खुल जाती हैं तो ब्लीडिंग, अगर एक्सटेंसिव टीयर्स हैं, एक्सेसिव पेरिनियल ट्रॉमा है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। देन द रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यू, द रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यू एंड मेम्ब्रेन कॉज 5 to 10% ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यूट्रस ने तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना जब तक वो एम्प्टी नहीं होगी। अगर कोई थोड़ा बहुत प्लेसेंटल टिश्यू अंदर पड़ा हुआ है, मेम्ब्रेन्स पड़ा हुआ है, तो यूट्रस तो रिलैक्स ही रहेगी, पेशेंट को ब्लीडिंग होती रहेगी। ठीक है, अब ये रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू होता क्यों है? इन मॉर्बिडली अडहेरेंट प्लेसेंटा, मॉर्बिडली अडहेरेंट प्लेसेंटा में बी प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा और परक्रीटा। ठीक है, देन इन मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा, जब आप मैनुअली रिमूव करते हैं तो मैनी अ टाइम्स प्लेसेंटा पूरा डिलीवर नहीं होता, या अगर प्लेसेंटा डिलीवर हो भी जाए तो मेम्ब्रेन्स का कुछ पार्ट ऊपर फंडस के साथ अटैच होता है विच यू फेल टू डिलीवर विद योर हैंड। ठीक है, तो वो ऊपर ही पड़ा रहता है, आपको पता ही नहीं वो पड़ा हुआ है। देन इन मिस मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, मिस मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का क्या मतलब है कि आपने गलत मलत टाइम पे इंटरवेंशन की, उसको बहुत, जब आपने कॉर्ड क्लैम्प और कट की उसके बाद आपने एकदम यूट्रस को खींच दिया, उसको कॉर्ड को एकदम ज़ोर से खींच दिया, जिसकी वजह से प्लेसेंटा जो है वादा आपके हाथ में आ गया, कॉर्ड टूट गई, इस तरह से कोई मसले मसाइल हो गए। इन अनरिकग्नाइज सक्सेंचुरेट प्लेसेंटा, जो सक्सेंचुरेट प्लेसेंटा होता है उसमें देयर इज एन एक्स्ट्रा सक्सेंचुरेट लोब ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी आपने बेबी के बाद प्लेसेंटा डिलीवर करना है तो आपने प्लेसेंटा को अपने सामने डिलीवरी टेबल पे रखना है और सारा प्लेसेंटा के लोब्स और उसके कॉटिलिडन गिनने हैं, पूरे करने हैं, ऊपर से उसकी मेम्ब्रेन्स पूरी करके देखनी है कि आया प्लेसेंटा पूरा है कि नहीं, कंप्लीट डिलीवर हुआ है कि नहीं, मेम्ब्रेन्स आपको जो नज़र आ रही है वो कंप्लीट हैं कि नहीं। ठीक है, सक्सेंचुरेट लोब जो है वो क्योंकि एक्स्ट्रा लोब होता है तो मैनी टाइम्स यू मे मिस इट। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो नॉर्मली आपको प्लेसेंटा नज़र आ रहा है वो एक जैसे एक नॉर्मली कंप्लीट प्लेसेंटा उसी तरह से है, लेकिन इसका जो एक एक्स्ट्रा लोब है अब नॉर्मल वन वो कहीं ऊपर फंडस के जगह पे पड़ा हुआ है जो आपको पता नहीं चला। ठीक है, देन देयर मे बी कोएगुलेशन डिफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एब्रप्शो प्लेसेंटी, जैसे हमने पहले भी कहा कि एब्रप्शो प्लेसेंटी में क्या होता है कि एक थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होती हैं, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये डीआईसी कॉज करती हैं जिसकी वजह से पेशेंट के जो कोएगुलेशन है डिस्टर्ब होती है। ठीक है, और एक्सेस थ्रोम्बोप्लास्टिन फ्रॉम अ रिटेन डेड फीटस, अगर पेशेंट आईयूडी के साथ आई है, काफ़ी देर से उसकी इंट्रायूटेरन डेथ हुई है तो ऑब्वियसली उस डेड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होंगे। देन एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म और स्फीयर प्रीक्लैम्पसिया, इक्लैम्पसिया, सेप्सिस, इन सारी चीज़ों में पेशेंट का जो कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं वो नॉर्मली जैसे कोएगुलेट करते हैं उस तरह नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पेशेंट हैज़ इंक्रीज टेंडेंसी टू ब्लीड। These coagulopathies may present as hypofibrinogenemia or thrombocytopenia or DIC. और sometimes transfusion of more than 8 units of blood may itself induce a dilutional coagulopathy। ठीक है, कभी कभी अगर बहुत सीवियर पोस्टमार्टम हेमरेज है, आपको बार बार जो है वो करना पड़ रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ रहा है, तो उससे भी ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनमें एक ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड कोएगुलोपैथी है वो भी हो सकती है। फिर वॉन विलिब्रांड डिजीज़ है और ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और ल्यूकीमिया। ठीक है, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये बेसिकली एंटीकोएगुलेट करते हैं। नाउ हाउ डू यू सी दैट द पेशेंट इज हैविंग इंक्रीज ब्लीडिंग। ठीक है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये पेशेंट जो है इसको पोस्टमार्टम हेमरेज है, उसने खुद तो नहीं बताना। ठीक है, तो आपको खुद ऑब्जेक्टिवली कुछ देखना पड़ेगा जिससे आप ये असेस करें कि पेशेंट को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है।
इसमें आपके पास हिस्ट्री आ जाती है। हिस्ट्री जैसे समटाइम्स पेशेंट कहीं आउटबॉर्न कहीं किसी और क्लिनिक पे डिलीवर हुए होते हैं और वो पे आप डिलीवरी के बाद आपके पास आ जाते हैं, मुझे हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, घर पे डिलीवर होते हैं, वो आपको बताते हैं आके कि इस तरह से बड़ा गुड साइज बेबी डिलीवर हुआ, या डिफ़िकल्ट लेबर थी वो, उससे डिलीवरी हुई और उसके बाद पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है। हेलो, हाँ जी, वालेकुम सलाम। Then you perform a general physical examination. In general physical examination will tell you कि bleeding कितनी हुई है, ठीक है, माइनर पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ है, मेजर हुआ है या सीवियर हुआ है, वो ऑब्वियसली आपको पेशेंट की जनरल कंडीशन से पता चल जाएगा। क्या क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा, इनकी पल्स पेशेंट की बहुत ज़्यादा होगी, ब्लड प्रेशर लो होगा, पेशेंट ज़्यादा हाइपोवोलेमिया में है। देन द सिम्टम्स ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग में अक्कर, फीलिंग ऑफ फेंटिंग, पैलर, स्लो कैपिलरी रीफिल, एयर हंगर एंड सिंकपी, कोल्ड स्वेटी स्किन एंड रेस्टलेसनेस, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम जो हैं ये डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ द ब्लड लॉस होंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एक ही पेशेंट में ये सारे हों, लेकिन जितनी किसी पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है, जितना पोस्टमार्टम हेमरेज सीवियर है, उतना ही ज़्यादा चांस है कि उसमें ये सारे प्रॉब्लम जो हैं वो ज़्यादा, किसी में एक दो प्रॉब्लम है, सिर्फ टैकीकार्डिया और लो ब्लड प्रेशर है, लेकिन अगर ज़्यादा पेशेंट को हैवी ब्लीड हुई है, सीवियर पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ है, तो फिर पेशेंट में कम इन अ स्टेट ऑफ शॉक ऑल्सो। Then on abdominal examination in atonic postpartum hemorrhage uterus is larger than expected, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो नहीं की हुई तो काफ़ी बड़ी नज़र आएगी, सॉफ्ट एंड स्क्वीजिंग इट लीड टू गश ऑफ क्लॉटेड ब्लड, ठीक है, जब आप उसे एब्डोमिनली पेल्पेट करके उसे प्रेस करते हैं तो साथ ही आपको हैवी वजाइनल ब्लीडिंग नज़र आती है। देन इन ट्रॉमेटिक पोस्टमार्टम हेमरेज यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। ये फिर आपको देखिए ना एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे फिर यू कैन डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग ऑफ द यूट्रस कि वेदर यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टेड और नॉट। अगर यूट्रस नहीं कॉन्ट्रैक्ट की हुई, इसका मतलब है कि पेशेंट को जो पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ है वो एटोनिक पोस्टमार्टम हेमरेज है, लेकिन अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है तो फिर ज़्यादा चांसेस ये हैं कि पेशेंट को ट्रॉमेटिक पोस्टमार्टम हेमरेज है। वजाइनल लेसरेशंस है, ये एक्सटेंसिव पेरिनियल ट्रॉमा है जिसकी वजह से ब्लीडिंग है। पॉज। नहीं बस अभी यही कंटिन्यू कर दो। अच्छा देन Then on vaginal examination, in case of atonic postpartum hemorrhage, bleeding is usually started few minutes after delivery of the fetus, ठीक है, and it is dark red in color and placenta may not be delivered, ठीक है। In case of trauma, the bleeding is bright red in color, ठीक है, क्योंकि डार्क रेड ब्लीडिंग इसलिए क्योंकि वो यूट्रस से आ रही है और वो डार्क रेड है वो वहाँ पे क्योंकि एक्यूमुलेटेड थी पहले से ऊपर से आ रही है, तो उसकी और जो फ्रेश ब्लीडिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम द पेरिनियल लेसरेशन, उस दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट, this is all about postpartum hemorrhage, its diagnosis, what are the risk factors which are associated with it, and in the next lecture we will discuss the management of the postpartum hemorrhage. Thank you.